after riding on the success of two originals, Jurm or Jazbaat, and Crime World, it's now launching वाह भाई वाह। शिमारू टीवी और इस शो के लॉन्च के बारे में और चैनल के कंटेंट के बारे में मैं आप बुलाना चाहूंगा। ऑब्वियसली इनको मैं बुलाना ही चाहूंगा, but he's one of the media stalwarts and out of the box thinker who has helped revisit Shimaru's strategy in line with evolving business needs and challenges. He has played an important role in Shimaru's entry into television segment with the launch of channels with his over the years. Shimaru has actually diversified into various consumer-facing businesses that includes Shimaru Speakers, OTT streaming app. I will now call upon Sandeep Gupta Entertainment Limited. Over to you, sir. Afternoon time, we were expecting from start, we have been class start, we mentioned this kind of genre we covered. The only thing that we were not covering when we were doing Maito, drama, crime, was something to, even we had animation where we were including kids, we had a bouquet of family entertainment content. The only thing which we were missing was how to bring in more laughter into the spice of the content programming. Not that we are expecting to have any good time. We have launched a comedy laughter challenge show by this. It's not a comedy show, and it's a laughter which may be satirical. It's a laughter which will tickle the mind of even the youngest to the oldest. So it's not a comedy show. We don't expect or don't like to people that we are coming out with a comedy show. It's a show which will have comedy, which will have poetry, which will have satire, and will cover the latest and the oldest kind of things which can come up. Another important thing that we were discussing when we were trying to begin this show is that how can we begin or make this as a platform where we can also see or begin the youth or the unlimited, what should I say, the inventory of skilled people who have not got platforms. So Shimaru, along with strategy, would make best efforts to bring in such talents onto the shows so that they also can grow and the entertainment is spread wide. So that's how we want this show to be known as. Baki says I don't really think I need to explain what is his capability and too small, that insignificant to explain his potentials. Right? He will make a large difference. So let's expect that we make wonders with this show. I would want each one of us here, just as me and everyone here, to ensure that we spread the information to people large and wide, that they can expect a very, very good family product. And they must see the family product. I will be marketing here, but I know I need to do the marketing because जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा वो आएंगे नहीं और शायद पता चलने के लिए हम यहाँ सब हैं. Right, so please circulate as much information as possible about the product. I'm not saying people should forcefully come. If the product has metals, they would definitely enjoy it. To ensure that the product has metal, we have the leader who can ensure that इस क्षेत्र में शायद नहीं बनता हो, maybe smaller. Somebody who is the leader in this kind of genre, we have brought him to see that everybody should believe that product में कितना दम हो सकता है. Right? Thank you so much for media watching it. What should I do? Sir, about the show and मैं आपके पास आता हूँ फिर से, पर आप मंच आपका है और आप वाह भाई वाह के बारे में बताइए और कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई और क्या what people have to expect from this. देखिए मैं शो के बारे में तो संदीप बता चुके हैं, हिरेन भाई बता चुके हैं, सुभाष इज वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दिस, तो और आप भी बता चुके हैं, आपने प्रोमो भी देखा. मैं सिर्फ कविता से अपना जुड़ाव बता सकता हूँ. मैं अपने लिए हमेशा कहता हूँ कि कविता मेरी आत्मा है और अभिनय मेरा शरीर. कविता में मेरे रोम रोम में है, मेरे रग रग में है, मेरे शब्द शब्द में है. मैं कवि होने की वजह से ही टेलीविज़न पर आया. बहुत छोटा सा था, 10 साल का, तब मैंने हिंदी कवि सम्मेलन में शुरुआत की बाल कवि के तौर पर.
और तब से लेके आप आज तक मुझे देख रहे हैं। टेलीविज़न पे भी जो मेरा पहला शो था वो कविता का ही शो था। मार्केट अधिकारी जी ने मुझे स्पॉट किया और उन्होंने कहा नहीं आपको एक शो हमारे लिए करना है, नहीं ब्रॉट मी ऑन टेलीविज़न फॉर दैट शो। वो बहुत बड़ा हिट हुआ उस ज़माने में। उसके बाद ये यात्रा एक के बाद चलती रही है। हिंदी कविता, सबसे खुशी की बात यह है कि ये शो उस वर्ष में आ रहा है जो हिंदी कवि सम्मेलनों का शताब्दी वर्ष है। 100 वर्ष इस साल हिंदी कवि सम्मेलनों के पूरे हो रहे हैं और उस अवसर पर यह शो आ रहा है। मैं शेमारू को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस साल इस शो को लॉन्च करने के लिए चुना। इससे बेहतर कोई साल हो नहीं सकता था। हिंदी कवि सम्मेलनों का शताब्दी वर्ष और ये शो, हिंदी कविता हमारे देश के मूल में है, मेरे प्राण में है और सब जन जन में बसती है। आज भी आप देखें हिंदी कवि सम्मेलन में 50,000, 60,000, 1 लाख तक लोग इकट्ठे होते हैं और जगह जगह हर रोज होते हैं। पंडित गोपाल दास नीरज जो बहुत बड़े कवि गीतकार और जिनका आशीर्वाद सदा मुझ पे भी रहा, जिन्होंने उनके लिखे हुए आपने बहुत सारे नगमे सुने होंगे, इतने खूबसूरत लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, या शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, या फूलों के रंग से दिल की कलम से, या दिला शायर है, गमाज नगमा, या रंगीला रे, या वो मेरी शर्मीली, या ए भाई जरा देख के चलो। तमाम ये गाने नीरज जी ने लिखे। नीरज जी की एक पंक्ति है जो मुझे सदैव स्मरण होती है और मैं हमेशा कहता हूं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो हम वो सौभाग्य लेके जीने वाले लोग हैं। और इस शो में वाह भाई वाह में हम जैसा कि कहा कि नए टैलेंट को भी करेंगे, वो हमारा बहुत बड़ा फोकस है। आप यकीन नहीं करेंगे जितने दिन भी हमने शूट किया है, एक भी शेड्यूल ऐसा नहीं रहा जिसमें 2 या 3 लोग ऐसे नहीं थे जो पहली बार किसी टेलीविजन चैनल पे आ रहे थे। एवरी शेड्यूल वी स्पॉटेड कपल और डिफरेंट प्लेसेस ऑफ हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों से जिनमें प्रतिभा है, जिनके पास कविता की ताकत है और उन्हें अब सारा देश, सारी दुनिया जानेगी। इस शो के माध्यम से हम घरों तक पहुंचेंगे। ये एक शो है, जैसा संदीप ने बिल्कुल ठीक कहा कि फैमिली प्रोडक्ट है। सारा परिवार इसे साथ बैठ के देखेगा क्योंकि इसमें 8 साल से लेकर 80 साल तक के बच्चे के लिए सब कुछ है। मेरे लिए शो नहीं है, मेरे लिए हिंदी कविता जो है वो जीवन है। जब भी हिंदी कविता की बात आती है फिर मेरे लिए वो सबसे सर्वोच्च होता है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता, क्योंकि उसी ने मुझे बनाया। मैं जो कुछ बना हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों से बना, इसलिए मंच मेरी माँ है। और जब मैं हिंदी कविता के लिए काम करता हूँ तब मैं काम नहीं करता हूँ, क्योंकि उससे मुझे मोहब्बत है, वो मेरी आत्मा है। तो बस आप ये समझ लीजिए कि ये शो, मैं भी ईश्वर से दुआ करता हूँ, माँ सरस्वती से ये प्रार्थना करता हूँ, जिनका मैं भक्त हूँ, बाला सती जी, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि ये लोगों तक पहुँचे, लोग इसे खूब प्यार दें। और चूंकि हिंदी कविता वैसे ही जन जन में बसी हुई है, उनके मानस में है, तो वाह भाई वाह देखें और देश का हर घर रात को बोले वाह भाई वाह। थैंक यू। वाह भाई वाह, मजा आ गया। नहीं, आपको यहीं पे ही रुकना है। हम थोड़ी चर्चा करेंगे सर। ऑफ कोर्स ये शो तो आ रहा है, बट जब आपने जैसे अभी बताया बचपन से ही आपने चालू किया, मैं जानना चाहता हूँ कि किसी ने पकड़ के बोला अरे शैलेश तुम्हें यही करना है, तुम्हारा यही इसमें ही तुम जाओगे ऐसे कभी? और कभी किसी ने फटकारा आपको अरे ये क्या कर रहे हो? अगर फटकार दिया होता तो शायद मैं नहीं होता। मैं आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स। मैं अपने माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। कई बार मुझसे सवाल किया जाता है कि आप में लिखने का शौक कैसे पैदा हुआ, और इसका जवाब मैं बहुत ईमानदारी से देना चाहता हूँ कि मुझ में लिखने का शौक पैदा नहीं हुआ, मैं पैदा ही ये शौक लेके हुआ था। जैसे ही मैंने कलम चलानी शुरू की, मतलब ये जब अक्षर ज्ञान होता है तभी से मैंने शुरू कर दिया था, कार्टून बनाना था। बहुत छोटे छोटे गाँवों का पला बड़ा व्यक्ति हूँ मैं। इतने छोटे गाँव जिनके नाम भी नक्शे पे आपको शायद नहीं मिलेंगे, राजस्थान के उतने छोटे गाँवों में पलता था। और आज से करीब उस ज़माने में 40-45 साल पहले, तब तो कुछ भी नहीं होता था। 4-5 हज़ार की आबादी, 1500 की आबादी, ऐसे गांव होते थे। नौकरी पे चले जाते थे माता पिता, तो मुझे घर में अकेला रहना पड़ता था स्कूल से आके। तो मैगजीन्स हमारे घर में बहुत आती थी। वो जिस विभाग में थे तो वहाँ मैगजीन्स जो है उनका विभाग ऐसा था कि उन्हें भी पढ़ना खूब होता था। तो मैं अकेला होता था, खाना खाता था तो पढ़ता था, तो पढ़ने की आदत मुझ में रही। तो फिर मैंने कहा एक दिन बीमार पड़ा तो कलम लेके लिखना शुरू कर दिया। सितंबर 1980-81 की बात है। जब मैं लिखा तो कुछ कविता नुमा था। उसके पहले हालांकि स्टेज पे मैं वैसे ही चला गया था। एक दिन मैं मेवाड़ में मावली एक गांव है वहाँ रहता था और स्टेज पे कुछ सुना रहा था और बहुत भीड़ थी और मैं अचानक ऐसे ही कोई एंकर के पास यूं ही पहुंच गया। मैं 7 साल का रहूँगा, मुझे भी कुछ सुनाना है। उसे इजाज़त दे दी, हाँ आ जाओ। और मैंने सुना दिया, लोग हंसे तो बड़ा अच्छा लगा। तो 10-11 साल का मैंने कुछ कविताएँ लिखी
और पिताजी को सुनाई तो उनका यार ये तो बहुत बढ़िया कविता है। उन्होंने मुझे निराश नहीं किया, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। और वहाँ से 38 किलोमीटर दूर एक गांव है सुमेरपुर, वहाँ एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हो रहा था। वहाँ मुझे स्कूटर पर बिठा के ले गए, निक्कर में मैं शर्ट पे, और 20-25 हज़ार लोगों की भीड़, और कविता पढ़वाई मुझ बच्चे को। और जब 25 हज़ार लोगों की तालियां कानों में पड़ी, तभी मुझे लग गया कि मेरा जीवन शायद यही है। इसलिए ना तो कोई फटकार थी, ना किसी ने कहा कि तुम्हें कुछ बनना है। उन तालियों की आवाज़ ने मुझे कहा कि शायद मुझे यहीं रहना है, इस मंच पे रहना है। क्या बात है सर, वाह भाई वाह, ये एक्चुअल में वाह भाई वाह हो गया। सर आगे बढ़ते हैं। कुछ 21वीं सदी जो आपकी एक बहुत ही जी। नामी पोयम है सर, उसके बारे में दो थोड़ी पंक्तियां हो जाएं अगर आप पूरी कविता सुनाना तो संभव नहीं है। हाँ हाँ वो लेकिन मैं 2 पंक्तियां सुना देता हूं। जो आपने कहा 21वीं सदी का जो कहा, मैं सिर्फ एक पंक्ति सुनाता हूं। उसकी जो पंक्ति अपने आप में मुझे लगता है कि पूर्ण है। मैंने सिर्फ इतना सा लिखा कि 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है, 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है, पहले अभावों में खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव है। जब कुछ नहीं था तब सब कुछ था, और आज सब कुछ है तो कुछ नहीं है। और उसी की एक पंक्ति और याद आती है कि सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी, ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे ना, तब जिंदगी थी। क्या बात है सर, क्या बात है, वाह भाई वाह। सर मूविंग और भी जानना चाहूंगा कि बेटी आपका एक बहुत क्लोज टू दी हार्ट थीम है या टॉपिक है, आप उसके बारे में लिखते हैं, आप या बताते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ पंक्तियां वो उसके बारे में बोलना कविता चाहेंगे? तो फिर कभी मैं सुनाऊंगा। हाँ, वो कविता बड़ी लंबी कविता है, बड़ी पॉपुलर कविता है। हाँ, तो वो हाँ। बेटियां जो कविता है, उस कविता ने मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट वायरल पोएट्रीज Yes, जो है, yes. मतलब सर दूसरे पर वो बताना चाहेंगे कि सर क्या ऐसा कुछ कोई इंसिडेंट था कि हाँ भाई जी। वो लिखना है हमको? जी, नहीं ऐसा तो- मैंने कभी कोई हाँ। कविता सोच के नहीं लिखी। हाँ ये कविता बड़ी व्यक्तिगत कविता थी मेरी। मुझे नहीं मालूम था मैं कभी स्टेज पे सुनाऊंगा, लेकिन इंसिडेंट सुना देता हूँ वो, जिस वजह से मुझे कविता लिखी। बहुत साल पहले की बात है। आप जानते हैं टेलीविजन में जो शो करते हैं हम लोग, तो हमारे पास समय के अलावा सब कुछ होता है। और एक ज़माना ऐसा था जब मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहा था, खूब सारे शोज़ जिसमें तो सब कुछ था, लेकिन वक्त नहीं था। माई डॉटर वॉज वेरी यंग, और वो जोधपुर में उस वक्त थी। अब तो विदेश में रहती है, अब तो ग्रेजुएट हो रही है वो इस महीने। तो और मैं उदयपुर किसी शो के लिए गया था, तो उससे मुझे कॉल किया। ये कविता क्यों लिखी गई बस उतना सा बता देता हूँ। शी कॉल्ड मी, वो मुझे बब्बू बुलाती है, बब्बू वेयर आर यू? मैंने कहा मैं उदयपुर में हूँ। तो क्या आप जोधपुर आ रहे हैं मुझसे मिलने? मैंने कहा नहीं, मेरे को शूट है, शाम को पहुँचना है मुंबई, और नाइट शूट है, तो मैं नहीं आ पाऊँगा। उसने फ़ोन रख दिया। फिर पता नहीं उसने कहाँ सुना होगा या क्या किया होगा, आई डोंट नो, कैसे उसके दिमाग में आया मुझे नहीं पता। उसने मुझे वापस फ़ोन किया, बोले आप शूटिंग करते हैं तो आप एक दिन का क्या चार्ज करते हैं? तो मैंने कहा क्यों सवाल कर रही हो तुम? कि नहीं, अगले हफ्ते मेरा एनुअल डे है और मैं परफॉर्म कर रही हूँ स्टेज पे, तो मैं क्या प्रिंसिपल से बात करूँ कि आपको कमर्शियली बुलाए एक दिन के लिए एज ए चीफ गेस्ट, ताकि आप आके मुझे देख सकें? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। मैं उस दिन दुनिया का सबसे गरीब आदमी हो गया था ये सवाल सुन के। तो मुझे लगा कि हमारे पास जो चीज़ें होती हैं हम उनके होने का एहसास नहीं करते। तब मैंने उस वक्त उस दिन ये कविता लिखी थी एक फ़्लाइट में टिश्यू पेपर पे, और फिर वो कविता दुनिया की कविता हो गई। यस सर, थैंक यू सो मच सर। आप मारवाड़ी हैं जी। है ना, तो बिल्कुल मैं ये पूछना चाहूंगा सर, खाने में क्या क्या पसंद है? जो भी जैसे माँ- मारवाड़ी वो भी माँ के और हाथ का हो, बस और कुछ नहीं। अच्छा, माँ से सर बात आई, एक आपकी अगेन बहुत ही वायरल पोइट्री, और मुझे भी पसंद है और काफी लोगों ने सुनी भी होगी, बट अगर कुछ पंक्तियां उसकी हो जाएं, क्योंकि वो एक्चुअल में काफी दिल को छूने वाली है। एक्चुअल में अगर आप उसको सुनेंगे तो कहीं ना वो कहीं माँ कविता, फिर वो बहुत लंबी कविता है। स्टार्टिंग कुछ और 4-5 जब भी मैं लाइनें या- सुनाता हूँ माँ कविता, स्वयं भावुक हो जाता हूँ। लेकिन उस कविता से पहले मैं एक अंश है वो सुना देता हूँ, 2 पंक्तियों का, सिर्फ 2 पंक्तियां सुना देता हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ लोगों को कि हमें मांगना कहाँ चाहिए और हम मांगते कहाँ जा कर हैं। जिनसे मांगना चाहिए उनसे हम नहीं मांगते, और कहाँ जाके मांगते हैं। तब मैं 2 पंक्तियां मैंने लिखी, वो कविता फिर कभी सुनाऊंगा, मौका हुआ तो किसी दिन वाह भाई वाह पे सुनाऊंगा। लेकिन आज मैं उसकी वैसे ही उस कविता के पहले जो मैं 2 पंक्तियां सुनाता हूँ वो सुना देता हूँ। मांगना कहाँ चाहिए, मांगते कहाँ है। एक लड़का था, वो ईश्वर से बहुत कुछ मांगता, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं। तो एक दिन मंदिर में गया, चिल्लाने लगा, रोने लगा और कहने लगा तू क्यों नहीं सुनता मेरी। भगवान से बात करने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा और कहने लगा तू क्यों नहीं सुनता मेरी,
क्या दमदार मेरी दुआ नहीं है क्या? भगवान प्रकट हुए और कहने लगे तू मांगने यहां क्यों चला आया? तेरे घर में मां नहीं है क्या? मेरे ख्याल से मैं भावुक हो जाता हूं जब भी वो कविता पढ़ता हूं, इसलिए बस इतना अंश ही सुनाऊंगा मैं उसका। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना एक तो समय दिया और इतना सब आपने शेयर भी किया हमारे साथ। नाउ आई वुड लाइक टू ओपन द Q&A फॉर द मीडिया, बट उससे पहले मैं सब बुलाना चाहूंगा फॉर द फोटो ऑफ। इस बार कुछ अलग नया क्या है? बरसों से आपका शो देखते आ रहे हैं जी। और बड़ा आनंद आता है, तो मैं जानना चाहूँगा, कई बार आप एक्सपेरिमेंट करते रहते, कोई सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाते हैं, अलग से कोई एक कवि आता है जी, उसको पुरस्कार देते हैं जी। इस बार वही सब है कि आप कुछ नया है? क्या शुभ नाम है सर आपका? शो में जो फॉर्मेट नहीं, आपका नाम बताएं सर। वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी। जी। तो जो फॉर्मेट आपका अब तक हमने देखा है जी, उससे हटकर कुछ और नया है या वही फॉर्मेट? वेद प्रकाश जी, कविता एक और शायरी ये ऐसी चीज है जिसमें छेड़छाड़ संभव भी नहीं है और करनी भी नहीं चाहिए। हम उसमें थोड़े बहुत ट्वीक ये कर सकते हैं कि कभी कोई सेलिब्रिटी आगे कविता पढ़ ले या कोई हम फिल्म का दृश्य बता दें, उस पर कोई कविता हो जाए, लेकिन ये सब चीजें जो है वो मूल भाव जो है उसका वो कविता ही है। आप ये देखें कि हमारा जो मूल भाव है जीवन का वो हमेशा समान रहता है। गाना गाना है, अब आप देखें सिंगिंग शो देखें, मूल उनका गाना ही है। अब उसके अंदर हम थोड़ा सा में बम फोड़ दें, लाइट लगा दें, सेट बड़ा बना दें, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मूल भाव कविता ही है। और उसका प्रेम चूंकि जनता में इतना है, इसलिए उससे बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की गुंजाइश भी नहीं है। और चूंकि आप स्वयं समझते हैं कि भाषा का कोई भी क्षेत्र हो उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश, बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की भी नहीं जानी चाहिए, वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू सर। सर मेरा नाम विजया तिवारी है। शैलेश जी विद्या आपसे जी। विजया तिवारी। विजया जी। जी। मेरा सवाल आपसे है जी। पिछले 2 साल में हम सब ने बहुत बुरा दौर देखा है। उस दौरान काम सब बंद हो गया था, हम सब रिस्ट्रिक्ट हो गए थे घर के अंदर, मजबूर कर दिया गया था, किसी ने ऐसा समय नहीं देखा था। उसके बाद अब आप जब निकल रहे हैं, शूट कर रहे हैं, लाइव शोज कर रहे हैं, जो आप इतने सालों से करते आ रहे हैं, उसका आनंद अगर आप एक्सप्लेन कर पाएं तो। आप कल्पना नहीं कर सकते, वो आनंद से भी कोई बड़ा शब्द है तो वो है, और ये आप सबके साथ होगा। 2 साल हमारी जिंदगी, मतलब क्या महेंद्र अजनबी एक कवि है, हमारे शो में आए थे, उन्होंने एक पंक्ति बढ़िया कही थी उस दिन, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो पंक्ति। उन्होंने इन 2 सालों के बारे में सिर्फ एक पंक्ति कही। हम उर्दू में एक शब्द है कसीदा, मतलब जब किसी की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं तो कसीदा पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि ए करोना, अब हम क्या पढ़े कसीदे तेरी शान में, 2 साल निकाल दिए निक्कर और बनियान में। तो ये हाल हम सबका था, लेकिन वहां से निकल के जब वापस हम लोग लौट के आए, मंचों पे आए, तो आप समझ लीजिए कि जीवनदायिनी, ये पुनः जो जीवन है वो मिला है। शुरुआत में भय था, डर था, और पता नहीं क्या होगा, कैसे नहीं होगा, लेकिन अंततः मानव जो है ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। हम पहाड़ जो है उसकी ऊंचाई वही रहनी है, घटनी बढ़नी नहीं है, लेकिन हम हमारी क्षमताएं बढ़ा सकते हैं कि हम पहाड़ कब चढ़ें। हम चाहें तो सूरज को मुट्ठी में कर लें, हम आसमान निगल लें, हम नदियां जो हैं वो अपने सीने पे झेल लें, हम जो समंदर है उन्हें कैद कर लें। तो ये तो एक बहुत छोटी सी महामारी थी जिसने हमने अपनी जिजीविषा से इस पे जो है विजय प्राप्त की। और आप भी जो पत्रकार लोग हैं जिन्होंने उस ज़माने में उस वक्त भी काम किया और इतने इन परिस्थितियों में काम किया, तो वो तमाम लोग बड़े धन्यवाद के पात्र हैं, और ईश्वर को धन्यवाद कि हमें फिर से जीवन जीने का मौका मिला। हेलो सो जी। श्रद्धा या जी श्रद्धा। शैलेश जी, ये पूछना चाहूँगी कि सिलेक्शन जब किया जाता है, कोई एक टॉपिक चूज़ करते हैं कि किस बेसिस पे आपने सिलेक्शन किया है इस शो के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा इस मामले में ईश्वर को धन्यवाद देना पड़ेगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पे इतने से उम्र से हूँ, तो 42 साल से हो गए। तो जो कविता पढ़ी जा रही है, जो कविता लिखी जा रही है, जो कविता सुनी जा रही है, मैं उसके बहुत नज़दीक से उसके संपर्क में हूँ। मैं खुद बहुत बड़ा पाठक हूँ और श्रोता हूँ,
तो मैं बहुत पढ़ता हूँ, बहुत लिखता हूँ, तो जो भी अच्छा लिखा जाता है, अच्छा कहा जाता है, अच्छा कहा जा रहा है और जो अच्छा प्रस्तुत किया जा रहा है वो ईश्वर के आशीर्वाद से मुझे ध्यान में होता है। तो सिलेक्शन ऐसा कोई नहीं है क्योंकि प्रक्रिया उसमें चल रही है कि हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जो भी अच्छा है उससे आना है। शैलेश जी, सर यहाँ पे सर जी सर पूछना चाहूँगा कि अगर ये स्पॉट बंद हो जाए, हॉल की लाइट तेज हो जाए ना तो सब नजर भी आ जाएंगे। हाँ हाँ जी, इसको और हॉल कम की कर लाइट दीजिए तेज, थोड़ा। अच्छा आपको शूट के लिए, अच्छा सॉरी सर। सर जी पूछना चाहेंगे कि आजकल जो कविता मतलब ये टाइम पे जो कविता लिखी जा रही है या कविता का जो भी मतलब जिस हिसाब से कविता लिखी जा रही है, अगर कुछ पॉलिटिकल सटायर भी हो, तो आजकल के दौर पे जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको क्या लगता है कितना है और कितना नहीं है? क्या सर, क्या नहीं है, क्या नहीं है? सर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कितना है कितना नहीं है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है ही, किसने रोका है? लिखा अच्छा। हाल ही में हमने देखा वीरदास जी जो जिनकी पोयम जिन्होंने यूएस में उन्होंने पोइट्री पढ़ी थी और उसके लिए जो है काफ़ी हंगामा हुआ था। देखिए उस बारे में मेरे को जानकारी नहीं है इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक आप ये बात करें कि कलम तो हमेशा जो है अपना कार्य करती है और कलमकार हमेशा अपना कार्य करता ही है। तो जो भी लिखा जा रहा है वो उसी ढंग से लिखा, मैं तो कोई परिवर्तन नहीं देखता, जैसा इतने सालों से मैं मंच पे हूँ उसी अंदाज से लिखा जा रहा है, उसी ढंग से लिखा जा रहा है और अच्छे ढंग से लिखा जा रहा है, अच्छा कहा जा रहा है। जो युवा है वो बहुत बढ़िया ढंग से अपनी बात कर रहा है। पॉलिटिकल सटायर की बात की जाए तो अगर पॉलिटिकल सटायर करते हैं हम लोग, मैं सटायर को पॉलिटिकल नहीं करूँगा, सिर्फ सटायर रखूंगा। तो व्यंग्य जो है वो बहुत अच्छा लिखा जा रहा है और बहुत अच्छा कहा जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है किसी को भी। How do you view this Shemaru TV? I mean, the representative of Shemaru TV, the future of Shemaru TV. Can you repeat? Yes, you're asking what is. How do you view? I mean, this may be one of the beginning of or another step for Shemaru TV. Okay, so what is the we have future? launched Shemaru TV for the last 2 years, and we have been very well accepted. We've been very heartfully accepted by a lot of people. We also go out down to the market and check कि is our content being aware, लोगों को पता है क्या content हमारा क्या चल रहा है. In the FTA space, pay space, yes, there is a different kind of a challenge, but in the FTA space, Shemaru TV is really very well accepted, and that is helping us to be more sure to create more content. अभी आपने ये show हमारा launch हुआ है. In maybe 2 months time, we will be launching one more show. Actually, we have a couple of shows to be launched within this year, and the confidence of the acceptability of the audience is giving us the belief that we should continue doing as much as possible in launching more and more shows. So that makes it very clear that we want this to be a long run. Thank you so much. और कोई मीडिया से? शैलेश जी, अंपिका या अंकिता, अंपिका, अर्पिता जी, अंपिका सॉरी यस। तो मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे कि आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ दिया है, तो आपके जो दर्शक है काफ़ी उससे निराश है, तो क्या आने वाले समय में आप वापस शो में नजर आएंगे या नहीं? वो दर्शक हमारे पास, मेरे ख्याल से आज हम सिर्फ वाह भाई वाह की बात करें। नहीं शैलेश जी, वो दर्शक हमारे पास आके नहीं वो वाह भाई वाह की बात करें आप। आज हम वही बात कर रहे हैं इसी शो के बारे में। आज क्योंकि शो का लॉन्च है अंपिका, तो लेट्स कीप इट टू वाह भाई वाह, और एक्चुअल में मनाए वाह भाई वाह। शैलेश जी, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, राइट? हम फिल्म में बोलते हैं जो गाने की लिखावट है, द क्वालिटी ऑफ राइटिंग और हैज चेंज्ड. हाँ, क्वालिटी ऑफ राइटिंग हैज डिग्रेडेड बिटवीन व्हाट वी वेर. जो शिमारू की पुरानी लाइब्रेरी है जिसके दम पर हम आज भी शिमारू बाबई जो फिल्मी गाने वाला चैनल बहुत चलता है, हम ये सोचते हैं या बिलीव करते हैं कि आजकल के गाने याद नहीं रहते, राइट? द क्वालिटी ऑफ राइटिंग हैज चेंज्ड. मैं इतना ज़्यादा कवि पोइट्री फॉलो नहीं करता. आपको ऐसा इन पोइट्री लगता है क्या कि क्वालिटी गिर गई है? हाँ जी, हाँ जी. देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया संदीप आपने और मुझे बड़ा मज़ा आएगा इसका जवाब देने में.
क्योंकि ये सवाल कई बार मुझसे किया जाता है, नॉट अबाउट दी लिरिक्स इन द फिल्म्स, अबाउट द पोइट्री ऑल्सो, कि स्टेज पे एक ज़माने में नीरज जी, बाल कवि बैरागी जी, ओम प्रकाश आदित्य जी, अल्लड़ बीकानेरी जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, शाहिर लुधियानवी, ये सारे लोग, जो कैफी साहब, साहिर साहब, ये तमाम लोग, सुमन जी, मतलब तमाम लोग पढ़ा करते थे। वो ज़माना, वो दौर एक हुआ करता था, काका हाथरसी जी, तमाम लोग। तो लोग कहते हैं कि स्टेज पे भी क्वालिटी गिर गई है, ये ऐसा। देखिए, मैं चेंज कहता हूँ सिर्फ, मैं क्वालिटी गिरना या ठीक होना नहीं कहता, ना तो मैं उसका अधिकारी हूं ना मैं कहना चाहिए। देखिए, चीजें हमेशा कंटेम्प्रेरी होती हैं, चीजें समकालीन होती चली जाती है। जैसे आपकी मेरी भाषा है, वो हमारे बच्चों की भाषा नहीं है। जो मेरे पिताजी की भाषा है वो मेरी भाषा नहीं है। जो मेरे पिताजी का पहनावा है वो मेरा पहनावा नहीं है। मेरे दादाजी धोती पहनते थे, मैं पैंट पहनता हूँ। वो लकड़ी का वो खड़ाऊ पहनते थे, मैं ये जूता पहनता हूँ। तो चीज़ें हमेशा बदलती है, तो उसी लिहाज से लिखाई भी बदलती है, लेखन भी बदलता है, कंटेम्प्रेरी हो जाते हैं हम। लेकिन फिर भी दुख होता है मन में कि हम लग जा गले से 4 बोतल वोडका तक पहुंच गए और जो इश्क खुदा था वो इश्क कमीना हो गया। तो दुख तो जरूर होता है, लेकिन ये चीजें बदलती रही हैं। मैं ये नहीं कहूंगा गिरावट हुई है। हाँ, ये जरूर है कि याद नहीं रहते, उसका कारण मैं साइकोलॉजिकल मानता हूं। याद नहीं रहने का कारण शायद ये हो सकता है कि आज आपके पास ऑप्शन बहुत है। उस जमाने में आपके पास ऑप्शन एक रेडियो था और आप जो सुनते थे, दिन में 10 बार सुनते थे, आप वो दोहराते थे, गुनगुनाते थे। आज आपके पास वक्त का है तो, लेकिन आज भी बहुत ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा जा रहा। बहुत अच्छा लिरिक्स आज भी इसी कंटेम्प्रेरी दौर में भी कहा जा रहा है। संख्या बहुत बढ़ गई है, तो 1000 में से हो सकता है 2-4 अच्छे आते हो। उस जमाने में 100 में से 50 अच्छे आया करते थे, 60 अच्छे आया करते थे, 70 अच्छे आया करते थे। इट हैज बिकम कंटेम्प्रेरी, बट आई वुड नॉट से दैट कि गिर गया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जमाना तो सुनहरा वही था। सही है, थैंक यू सो मच। हेलो, हाय। There is one question. जी, मेरे को नजर नहीं आ रहा मैम, इसलिए। हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते। मेरा नाम सविता है जी। एंड पहले तो मुबारकबाद टीम शिमारू को फॉर द बिगनिंग ऑफ वाह भाई वाह। आई नो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग हिट। शैलेश जी हेल्प कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू रॉक। शैलेश जी, ये सवाल आपसे है कि वी ऑल अंडरस्टैंड दैट वी आर इंस्पायर्ड बाय यू फॉर योर फिनेस एज अ पोएट। तो आप किससे इंस्पिरेशन लेते हैं? इज़ देयर एनी पर्टिकुलर कवि जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिलती है? इज इट जिंदगी से आपको इंस्पिरेशन मिलती है? जिंदगी सुनीता जी, आपके सवाल में मेरा जवाब छिपा हुआ है। अच्छा। मेरी सारी प्रेरणा जिंदगी ही है। हाँ जी। और आसपास की चीजें मैं ऑब्जर्व करता हूँ। हाँ जी। और एक अच्छे आप लोग पत्रकार और कवि में कोई बहुत कलम के ही दोनों धनी हैं और कलम के ही सिपाही हैं। आप लोग भी ऑब्जर्व करते हैं चीजें, और ऑब्जर्वेशन से आपकी चीजें बाहर आती है। मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ। हाँ जी। तो प्रभावित मैं उस हर अच्छी चीज से होता हूँ जो किसी ने भी लिखी हो। अच्छा सुनना मेरी फितरत में है, चाहे वो संगीत हो या कविता हो, शायरी, कुछ भी हो। अच्छा सुनने, अगर मैं नहीं सुना तो शायद मुझे नींद ना आएगी उस रात। मुझे अच्छा सुनना और अच्छा पढ़ना बहुत आवश्यक है। आज भी मैं दिन में खाना खाते वक्त मैं खाना नहीं खा सकता जब तक मेरे पास पढ़ने को कुछ नहीं हो। आई डोंट ईट अनलेस आई रीड। मेरे गाड़ी में भी किताब रहती है तो आई रीड। तो जो भी अच्छा सुना जाता है, जो भी अच्छा लिखा जाता है, मैं उसे सुनता हूँ। और हाँ, निश्चित तौर पे ज़िंदगी मेरी प्रेरणा है, क्योंकि मेरी आसपास की जो चीज़ें हैं वहीं से। और मैं चूँकि ज़िंदगी को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास लड़का हूँ। जहाँ से मैं आया तो वो सिस्टम, वो वैल्यूज़, वो ज़िंदगी अभी भी भीतर वही है। मैं वही हूँ। मैं चाह के भी कभी फिल्मी नहीं हो पाया। मैं चाह के भी ऑफ कवि इसी से प्रेरणा लेते हैं। हाँ, रेस्ट ऑफ पीपल, रेस्ट ऑफ द पीपल, द बेस्ट कम्स आउट फ्रॉम दिस। आई होप सो सुनीता जी। मैं कोशिश तो यही करता हूँ उसी में से निकल के आया, क्योंकि कुछ अगर चीज़ें देखता हूँ तो उसी में से कोई ना कोई चीज़ निकल आती है। जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी से, उस ज़माने की ज़िंदगी पे मैंने जो कहा था वो ये कहा था कि मेरी ज़िंदगी 10 बाई 10 का कमरा, बीवी का गजरा। हमारी आधी इस देश की 80% ज़िंदगी यही है। मेरी ज़िंदगी 10 बाई 10 का कमरा, बीवी का गजरा, बिटिया जो छोटी, सुबह शाम रोटी, घर कब होगा जब होगा अपना, सेकेंड हैंड स्कूटर का अटूट सपना,
अमिताभ का क्रोध, मर्तबा, विचार बोध, बॉस की बीवी को रोज रोज सलाम, बनिए के बेटे को झुक झुक राम राम। असल में मेरी जिंदगी तो हर महीने की पहली तारीख को आती है, 10 तारीख तक खत्म हो जाती है। वाह भाई वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता जी। शैलेश जी, एक सवाल मेरा भी है। जी मैम। महिलाओं के हिसाब से हम हमेशा मंच पे पुरुषों को ही देखते हैं कवि के रूप में, कवियत्रियाँ बहुत कम दिखती हैं, तो इस शो से हम महिलाएं क्या उम्मीद कर सकती है? क्या हमें कवियत्रियाँ भी देखने मिलेंगी? कैसा होगा हमारे लिए? देखिए ये कम देखने को मिलती हैं इसका तो मैं देखिए क्या होता है कि एक ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर मंच पे कवि 100 होंगे तो जो कविताएं जो शायरा हैं वो शायद 20, 25, 30 रहेंगी, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है। इस शो में हमने ये जानबूझ के नहीं किया कि हम कोई प्रयास से ऐसा कर रहे हैं, सचमुच क्योंकि बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा कहती हैं। इस शो में अब तक जो हमने शूट किया है उसमें अंजुम रहबर भी आई हैं, उसमें तमाम जो कितनों के नाम लूँ मैं, जो उसमें आए हैं, नई जो कविताएं मंच पे आई, जो नए यूथ जो आया उनमें से बहुत सारे लोग आए हैं, कविता किरण भी आई है और पुराने लोगों में से खूब सारे लोग जो हैं, तो लगभग आप ये मान के चलिए आपको हर एपिसोड में अंदाजन एक कवित्री एक शायरा तो है ही। ये अब तक तो ऐसा संभव हुआ है। बहुत बढ़िया, क्योंकि महिलाएं ही अगर हम देखते हैं टीवी पे महिलाओं को तो इंस्पायर होती हैं। नहीं निश्चित तौर और वो बहुत अच्छा लिख रही है। वो इसलिए नहीं है कि वो इसलिए नहीं आ रही है कि सिर्फ नारी हैं या महिला हैं, वो बहुत अच्छा कहती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, तो इसलिए उन्हें आना ही। तो ये कोई जेंडर इनइक्वलिटी जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। जो भी अच्छा लिख रहा है वो वहाँ है और जो अच्छा कह रहा है वो वहाँ है। Anybody else? Anybody else from the media? हिरेन जी। We'll close now. Okay. या नमस्कार, शैमरा को 60 साल हो रहे हैं, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अभी इसके अलावा? थैंक यू, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमने एक्चुअली 60 साल के पर्व पे काफ़ी कुछ चीज़ें सोच रखी हैं। ऑफ कोर्स ये भी एक उसी की कड़ी है, एज आई सेड कि शेमारू टीवी में जो हमारी ओरिजिनल प्रोग्रामिंग है और उसको हमको कैसे और बढ़ाना है और उसको कैसे लोगों तक पहुंचाना है। उसके अलावा हमारे पास जो काफ़ी सारे फिल्म के राइट्स हैं, उसमें से हम प्लान कर रहे हैं कि उसमें से 6 फिल्मों के हम उसको रिकनेक्ट करेंगे थ्रू अ रीमेकिंग और प्रीक्वल सीक्वल, कुछ अलग उसमें एडिशनल न्यू क्रिएशन करके हमारे जो आईपी हैं इतनी बड़ी लाइब्रेरी में से उसमें हम करेंगे। और बहुत सारे और अनाउंसमेंट्स आएंगे आपको पूरे साल भर में, काफ़ी चीज़ें सुनने और देखने को मिलेंगी ड्यूरिंग दिस entire 60-year celebration for us. I would now call for photo op, and for the photo op, I would request Hiren Gada sir, Sandeep Gupta sir, Subhash Somani and Sailesh sir